Very lovely good morning children. Myself Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School Tonk. Children, in a previous video, we started chapter number 1 of science, which is food production. And we covered certain definitions of crops, agriculture, types of crops and so on. We also started the agricultural practices topic. What these agricultural practices are? These are the steps followed by the farmers in agriculture to get good crop yield. That is called as the agricultural practice. Yesterday we covered first agricultural practice, which was preparation of soil. Once when the soil is completely prepared, we prepare the soil by using two steps. First was the plowing or tilling, and second was the leveling of the solid soil clumps. So once the soil is prepared, अब next क्या करना पड़ेगा उसके अंदर? We need to sow seeds in that. उसके अंदर seeds को sow कर देते हैं. So the next agricultural practice is sowing of seeds. Simply, what is the meaning of sowing of seeds? It is a process of spreading the seeds in the soil so that they can germinate. Seeds को soil के अंदर spread कर दिया ताकि वो germinate हो सके. That is called as the sowing of seeds. Now farmers, जब वो farming करते हैं, agriculture करते हैं, there are a lot of precautions they need to take to get good crop yield. So the same precautions they also need to take while sowing of seeds in the soil. So the very first precaution जो उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, that is the selection of good quality seeds. अभी इसका क्या मतलब है? What are the good quality seeds? What are the bad quality seeds? The seeds which are free of germs and diseases, which are not being eaten by the insects. ऐसे seeds जिनमें कोई germs नहीं है, कोई disease नहीं है, किन्हीं insects ने उनको नहीं खाया है, those seeds are called as good quality seeds. जब seeds की quality अच्छी होगी तो for sure उनसे germination भी proper होगा, उनसे जो plant growth करेंगे वो भी properly growth करेंगे, तो farmer को अच्छी crop yield मिल जाएगी. And on the other hand, if the seeds are of bad quality मतलब या तो उन पे germs ने attack कर दिया, उनको insects ने bite कर लिया, या उनमें कुछ diseases हो गई हैं जिनकी वजह से वो अब उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रहे, उनको अगर फार्मर सो करेंगे फील्ड के अंदर, सॉइल के अंदर, तो प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होगा. फर्स्ट तो अगर जर्मिनेशन हो भी जाता है तो प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, गुड क्रॉप यील्ड उनको नहीं मिल पाएगा फार्मर्स को. सो द फर्स्ट स्टेप इज दे नीड टू सेलेक्ट द सीड्स व्हिच आर ऑफ गुड क्वालिटी. अब कैसे सेलेक्ट करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स कौन से हैं? आपने अपने घर पे मम्मा को देखा होगा किचन के अंदर, whenever she sows the whole grains in the water, पानी के अंदर जब किसी साबुत अनाज को, लाइक कोई ग्राम है, कोई पल्सेस हैं जो होल ग्रेन फॉर्म में होती हैं, उनको जब वाटर में सोक करते हैं तो you must have observed that some of the grains they start floating on the surface of water. वो पानी के ऊपर आ जाते हैं तैर के. What is the reason behind that? The reason is कि उन सीड्स पे या तो इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, या उसमें जो डिजीज है या जर्म्स हैं. These things make the seeds hollow from inside. वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, एंड hollow होने की वजह से उनका weight reduce हो गया, and they start floating on surface of the water. The seeds which are of good quality वो heavy होंगे. Being heavy in weight, they get settled at the bottom of the container. So this is how the same method is being used by the farmers also. बड़े बड़े वो pots यूज करते हैं, water उसके अंदर filled है, seeds को उसके अंदर pour कर दिया जिनकी उनको cropping करनी है, and after sowing the seeds, soaking the seeds in the water, जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे वो सेटल हो जाएंगे बॉटम पे, और जो बैड क्वालिटी सीड्स होंगे दे विल स्टार्ट फ्लोटिंग. उनको फार्मर्स वहां से रिमूव कर देते हैं एंड गुड क्वालिटी सीड्स को सो करते हैं इन द सॉइल. द नेक्स्ट प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द फार्मर्स इज अ प्रॉपर स्पेसिंग. जब भी सीड्स को सो करना है, जस्ट इमेजिन कि मेरे पास आई एम हैविंग अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन, हाँ, और उन ग्रेन्स को, सीड्स को मैंने रैंडमली स्प्रेड कर दिया सॉइल के अंदर, तो बहुत सारे व्हाट कैन बी द चांसेस आ कि कुछ जो सीड्स हैं वो हो सकता है कलेक्टिव फॉर्म में एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएं. ये अगर फील्ड है
और इस फील्ड के अंदर सीड्स को सो कर रहे हैं, और मान लो यहाँ पे जो है एक साथ 4-5 सीड्स आ गए और बाकी जगह पे जो है सीड्स बहुत डिस्टेंस पे हैं, फिर कुछ ऐसे प्लेसेस होंगे जहाँ पे सीड्स की गैदरिंग हो गई, ओवर क्राउडिंग हो गई। तो प्रॉपर स्पेसिंग का मतलब है कि सीड्स को जब सो करना है सॉइल के अंदर तो उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी हो, राइट, उनके बीच में प्रॉपर स्पेस हो, ओवर क्राउडिंग ना हो। अगर ओवर क्राउडिंग होगी, एक साथ बहुत सारे सीड्स यहाँ पे आ गए, तो दे विल जर्मिनेट फॉर श्योर, जर्मिनेशन तो उनका हो जाएगा, बट आफ्टर जर्मिनेशन व्हाट अबाउट देयर ग्रोथ? For their growth, they will be needed a lot of nutrients and air and water and sunlight also. तो जब एक साथ बहुत सारी चीजें एक जगह पे हैं तो उनको प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिलेगी, प्रॉपर एयर भी नहीं मिलेगी. There will be competition among all these seedlings for the nutrients and other requirements for their growth. और यही उनके बीच में अगर बहुत ज्यादा अगर डिस्टेंस होगी तो unnecessary there is a wastage of space. So there should be the appropriate space ताकि उनकी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड भी, नीड भी फुलफिल हो सके, सनलाइट, एयर, वाटर भी वो अकॉर्डिंगली यूटिलाइज कर सके. The next step is sown at reasonable depth. जब भी सीड्स को सो करते हैं तो ना तो ऐसा होना चाहिए कि वो सीड्स बिल्कुल ऊपर ऊपर रह गए सॉइल के, और ना ऐसा हो कि वो बहुत ज्यादा हमने उसको डेप्थ में ले जाके सो कर दिए हैं. क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? बिकॉज कि अगर सीड्स बिल्कुल हमने सो कर दिए हैं ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल, बिल्कुल सॉइल के ऊपर ऊपर सो कर दिया, दे आर नॉट कवर्ड विद द सॉइल, तो देयर आर द चांसेस दैट बर्ड्स माइट कम इन द फील्ड, दे कैन, दो सीड्स कैन बी ईटन बाय दी बर्ड्स, बर्ड्स उनको खा जाएंगे. तो जब सीड्स ही नहीं बचेंगे तो क्रॉप यील्ड कहां से मिलेगा फार्मर को? एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कि अगर उन सीड्स को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके, बहुत गहराई में जाके अगर सो कर दिया है तो जितनी ज्यादा डेप्थ में होंगे सीड्स, वहां पे सीड्स के लिए सफोकेशन क्रिएट हो जाता है. दे डू नॉट गेट द प्रॉपर एरेशन, प्रॉपर उनको एयर नहीं मिल पा रही उस डेप्थ के अंदर. अगेन विदाउट द प्रॉपर एयर दे विल नॉट बी एबल टू जर्मिनेट प्रॉपरली. सो द प्रॉपर डेप्थ, द एप्रोप्रिएट डेप्थ इज वेरी मस्ट फॉर द ग्रोइंग ऑफ सीड्स. द नेक्स्ट स्टेप इज sown in proper seasons. Now हमने बिगिनिंग में पढ़ा था इस चैप्टर की कि different plants they have different need of the temperature, humidity and water also. तो according to their needs हम crops को divide करते हैं in the two parts, रबी crops and खरीफ crops. खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जिनको हम रेनी सीजन में सो करते हैं, बिकॉज दोज क्रॉप्स विल बी नीडेड गुड अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर बिगिनिंग. उन प्लांट्स को अपनी बिगिनिंग जो टाइम होता है ग्रोथ का, बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट है उनको, तो रेनी सीजन में उनको ग्रो किया. रबी क्रॉप जो प्लांट्स होंगे दे आर सोन इन द विंटर सीजन, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, एटमॉस्फेयर से इतना मॉइस्चर उनको रिक्वायर नहीं होता. तो जिस सीजन में प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, इफ आई प्लांट द पैडी क्रॉप इन माय फील्ड इन द समर सीजन और से इन द विंटर सीजन, तो वहां पे प्रॉपर वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनकी नीड्स उस सीजन में फुलफिल नहीं हो पाएंगी. तो सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट को उनके सीजन, सीड्स को उनके रिक्वायर्ड सीजन के अकॉर्डिंग सो करते हैं. So these are the precautions to be taken by the farmers while sowing of the seeds in the field. The next question arises कि अच्छा हमें पता चल गया कि what the sowing is, क्या क्या precautions रखने पड़ते हैं farmers को sow करने के लिए seeds को. So the next question arises is कि what are the certain methods, क्या कोई सिर्फ एक ही मेथड है या हमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको फार्मर्स यूटिलाइज कर सकते हैं सीड्स को सो करने के लिए. So children, there are the 4 methods utilized by the farmer for sowing of seeds. The very first method is called as broadcasting. Word से समझ में आ रहा है broad, बहुत broadly किसी चीज की हम casting कर रहे हैं. तो broadcasting क्या होता है? It is a method जिसमें फार्मर्स ने अपने हैंड से रैंडमली सीड्स को स्प्रेड कर दिया ओवर द सॉइल के ऊपर. रैंडमली हाथ में सीड्स ले लिया और स्प्रेड कर दिया. अब सुनने से ही समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, यू कैन फाइंड आउट द रीजन दैट व्हाट इज द व्हाई दिस मेथड इज नॉट सो फ्रूटफुल फॉर द फार्मर्स. इतना अच्छा मेथड क्यों नहीं है ये?
क्योंकि इसमें चांसेस हैं उन चीजों के होने के जो ग्रोथ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर रैंडमली स्प्रेड करेंगे तो क्राउडिंग ऑफ सीड्स हो सकती है, हो सकता है वो प्रॉपर डेप्थ में ना सो हो, ऊपर ऊपर रह जाएं, उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग ना हो। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग मेथड। सो इस मेथड को बहुत कम, जैसे वीट है, मेज है, ये कुछ क्रॉप्स हैं जिनके लिए फार्मर्स इन मेथड को यूज कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग को, बट जनरली फार्मर्स अवॉइड टू यूज दिस मेथड। The next method is ट्रेडिशनल टूल। अभी ट्रेडिशनल टूल के अंदर फार्मर्स क्या करते हैं, कोई भी जो एनिमल यूज कर रहे हैं, ऑक्स है, काउ है, बुलक है, जो भी यूज किया, उसके पीछे की तरफ अटैच करते हैं एक टूल को, राइट। और टूल क्या होता है, इट इज अ फनल शेप्ड टूल। फनल जैसा शेप्ड टूल होता है जिसमें यहाँ पे फार्मर्स ने क्या किया, बहुत सारे सीड्स को एक साथ पोर कर दिया और यहाँ से वो सीड्स जो हैं वो जाते रहेंगे थ्रू अ पाइप और सॉइल के अंदर सीड्स को स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं। नाउ दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट वेरी फ्रूटफुल। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट कि यहाँ पे भी सीड्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं हो पाती, कई बार प्रॉपर डेप्थ नहीं हो पाती, प्रॉपर रोज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, इस मेथड को ज्यादा यूज करना प्रेफर नहीं करेंगे फार्मर्स। द नेक्स्ट मेथड विच इज नाउ डेज यूज्ड ब्रॉड वे बाय द फार्मर्स इज द सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल में क्या होता है, सीड ड्रिल के अंदर चिल्ड्रन ऊपर एक बड़ा सा बकेट जैसी शेप बनी हुई होगी और इस बकेट शेप के नीचे यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस है। इस स्पेस के नीचे फर्दर कुछ ऐसा टूल बना हुआ है जो नीचे से बिल्कुल पॉइंटेड है, शार्प है, राइट। इस टाइप का कुछ टूल होता है विच इज पॉइंटेड फ्रॉम दी बॉटम एंड सेवरल पार्ट्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर ही डिवाइड होगा। इसको ट्रैक्टर्स के साथ ड्राइव करते हैं फील्ड के अंदर, आगे ट्रैक्टर से इसको अटैच कर दिया तो यहाँ पे सीड्स को डाला, कलेक्ट किया और यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंटेड पार्ट्स हैं दे हैव प्रॉपर स्पेस इन बिटवीन देम। तो यहाँ पे नीचे से ये हॉलो होते हैं, नीचे में स्पेस है, तो क्या होगा, यहाँ से सीड्स आए यूनिफॉर्मली सब पाइप्स के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं एंड वन बाय वन इन जो स्पेसेस है इनसे सॉइल के अंदर जाते रहेंगे। नाउ सीड ड्रिल इज द बेस्ट टूल विच कैन बी यूज बाय द फार्मर्स बिकॉज इसमें प्रॉपर एक तो स्पेसिंग होती है, सीड्स जब सो करते हैं उनके बीच में प्रॉपर डेप्थ पे जाके वो सीड्स सो होंगे एंड मोर ओवर दैट जब एक बार सीड्स सो हो जाते हैं तो सीड ड्रिल मशीन क्या करती है, इट कवर दो सीड्स विद द सॉइल वंस अगेन, थोड़ा सा उनको सॉइल से फिर से कवर कर देती है सो दैट दे कैन नॉट बी ईटन बाय दी बर्ड्स और अदर इंसेक्ट्स, इजीली वो खा नहीं पाए। सो द लास्ट मेथड इज द नर्सरी। अभी नर्सरी क्या है, इट इज अ प्लेस, एक प्लेस एक जगह है जहाँ पे क्या करते हैं, सीड्स को जर्मिनेट करते हैं टू कन्वर्ट देम इनटू द सीडलिंग्स, स्मॉल जो बेबी प्लांट्स है उसमें वो कन्वर्ट हो सके और फिर वहां से जो गुड क्वालिटी ऑफ बेबी प्लांट्स होते हैं जिनको हम सीडलिंग्स भी कहते हैं चिल्ड्रन, उनको वहां से कलेक्ट करके मेन फील्ड के अंदर प्लग कर देते हैं, वहां पे उनको अटैच कर देते हैं ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ वहां पे फील्ड में कर सकें। अब नर्सरी को यूटिलाइज करने का क्या रीजन है, द रीजन इज कि कई बार जब सीड्स को मान लो फार्मर से सेलेक्ट कर लिए व्हाट आर द गुड क्वालिटी सीड्स, राइट, और उनको सो भी कर दिया सॉइल के अंदर, बट देयर आर द चांसेस कि गुड क्वालिटी सीड से भी प्रॉपर सीडलिंग बेबी प्लांट का फॉर्मेशन ना हो पाए, उसका प्रॉपर जर्मिनेशन ना हो सके। तो नर्सरी में क्या किया, सीड्स को सो कर दिया और सो करने के बाद सिर्फ जो गुड क्वालिटी ऑफ बेबी प्लांट्स हैं सिर्फ उनको वहां से कलेक्ट किया है और उनको फील्ड में जाके प्लग कर रहे हैं ताकि जो क्रॉप यील्ड है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सके, कहीं पे बैड सीडलिंग का कोई चांस ही नहीं रहता है। Now all the crops cannot be grown in the nursery, सारी क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते, but there are certain crops which are grown in the nursery, जैसे पैडी क्रॉप्स हैं उनको कर सकते हैं, या फिर जो अनियन है, चिली है, टमाटोज हैं, these are the crops which are generally grown in the nursery. So in this video we studied about the sowing agricultural practice, क्या होता है,
what precautions are being taken by the farmers, what methods can be utilized by the farmers. In the next video, we will study about the next agricultural practices, students. Thanks for watching.